ऑलराइट, सो चलते हैं हम लोग, मूव करते हैं स्पीकिंग क्लास की तरफ, ठीक है। और प्रैक्टिसेस हमारी सारी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो हम लोग स्पीकिंग की तरफ मूव करते हैं। दैट्स राइट, ओके। तो भाई आज हम लोग ना सीधे इंग्लिश से स्टार्ट करेंगे, कन्वर्सेशन स्टार्ट करेंगे। मैं यहाँ पर आपसे बात करूंगा, आप वहां पर मेरे से इंग्लिश में बात करेंगे, राइट। मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, आप जल्दी जल्दी से आंसर दो, मगर ये है कि जो भी आंसर दोगे दोस्त बिकॉज लगा के देना, बिकॉज लगा के देना। बिकॉज लगाने का मतलब ये है कि आपका सेंटेंस जो है ना आंसर देने वाले वो लेंथी हो जाएगा बस। तो जल्दी से इंग्लिश टू इंग्लिश स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, तो सुनो मेरे को, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, सो मैन, आर यू एबल टू स्पीक इंग्लिश और नॉट नाउअडेज? And how you can say you begin to speak English? How you can say that? All right. Are you feeling some changes in you, like first day when you started your class and today then you were speaking something? So are you feeling some changes in your English or not? All right. Do you want to learn fast English or slow English? And why? I like to give you two choices, guys. First of all, then you can just go for the government job. And the second, you can learn very fluent English. So which one is very much suitable for you? All right. My next question is that translation session. All right, the session of my class of the translation, it should be fast or otherwise slow in Hindi. All right, so I would like to say that if anybody outside means any outsider will say you that your English has some grammatical errors, all right, means you are speaking wrong English or you have some grammatical errors in your English, so what will be your answer that time? All right, you like outer beauty, otherwise internal talent. Which one do you like and why? All right, so what type of family do you want? The friendly nature, otherwise there should be the discipline in your family. What do you want that? All right, so whenever you start class, whenever I start my class here, so what do you think about the breathing session? Actually, first of all, I start my class with a breathe, like you speak some sentences Hindi to English very much faster. So what do you want to say about that? This is good or something is wrong here? And what do you think about the society is very much important for learning English? Otherwise, my class is enough. All right. So is it possible, guys, if a person, when you belong yourself from the Hindi medium, so even then you can speak English, otherwise you will find some difficulties to speak English here? What do you think? All right, actually then I would like to say here, then practice is not very much important. A person would like to become a very good English speaker. What do you think about that? And without the support of my family members, I also can speak English. It's easy. I want to say that. This is my answer. What do you want to say that? Am I right or wrong? And guys, actually, I would like to say that I prefer to go to the private companies. Actually, private job is much comfortable in comparison of your government job. And so what do you think that? Then you would like to seek yourself then in government job, otherwise private companies. चलो, इतनी कन्वर्सेशन बहुत है ना। अब जो है सांस वाला करो, सांस वाला करो। मैं अपने सेंटेंस से सांस में बोलूंगा जल्दी जल्दी, आप अपने बोलो। सांस भी लंबी रखना और स्पीड भी मेरे से तेज रखना। चलो स्टार्ट। ऑलराइट, मैं यहाँ पर आ रहा था, मैंने वो मैंने देखा देने से मैं जाने लगा बिकेट को मैं जाता हूँ जमाता हूँ कॉलेज जाता हूँ कॉलेज। मैंने भाई से कहा मैंने शहर में रासो तुम कहाँ जा रहे हो? मैंने पैसे देती है बनाएगी मैं पानी पीता मैं दोबारा मेरे पास पैसे नहीं है। 20 मनी आंसू मैं कमाना चाहूंगा लाइक 20 मनी आंसू। जब मैंने बाइक को देखा मैंने 100 बाइक मेरे पास में कार नहीं है 20 तक रासो ये कैमरा जिससे कैमरा मैं इसे बेचना चाहूंगा लाइक टू सेल टू दैट आल्सो। तुमने क्यों बेचा? व्हाई डिड यू सेल? और मैं अमेरिका गया था, व्हेन आई गॉट टू अमेरिका, वहां का कल्चर अच्छा है, देयर कल्चर इज सो गुड। एक बार और लो।
ऑलराइट दोस्त, मैं बोलना चाहूंगा लाइक टू स्पीक, मुझे ये पसंद है, हवाई की वेरी मच। जब भी मैं यहाँ पर आया था मैंने हेड कम ऑल्सो मॉर्निंग का टाइम था, वाज मॉर्निंग टाइम, मैंने गेट खोला, मैंने ओपन द डोर, तो मैंने सोचा बना तो मैं बाहर जाऊंगा, मैंने गो टू व्हाट्सएप, ये मेरी क्लास है, 10 माई क्लास में यहाँ पे बैठा हुआ था, मैंने बस नहीं, तो मैंने सोचा बना तो मैं तुमसे कहूंगा, मैं सिटी में कहने लगा वीकेंड में जल्दी बोलता हूँ, आई स्पीक फास्टर। ठीक, अपने आप भी कर लिया करो वाली प्रैक्टिस, कर लिया करो कर लिया करो यार। अबे हमने क्या करवाया, पहले हमने टेलीफोनिक करवाया है ना, पहले हमने, हाँ पहले हमने टेलीफोनिक राउंड करवाया है, दूसरा हमने करवाया हमारे पास में स्पीड, हिंदी इंग्लिश सेंटेंसेस है ना, जिसको स्पीड वाला ब्रीथ वाला बोलेंगे ना, ब्रीथ हिंदी इंग्लिश। ये मैं इसलिए लिख रहा हूं, जो हम लोग यहां पे अपने सेशन करेंगे ना, जाने के बाद आप उसे रिपीट करेंगे। अब तीसरा मैं करवाने वाला हूं ट्रांसलेशन। अब ये ट्रांसलेशन करवाने वाला हूं, मैं हिंदी में बोलूंगा, आप जरा इंग्लिश में बोलो, तैयार? ऑलराइट, तो बोलिए फटाफट से। एक्चुअली क्या है कि प्रैक्टिस हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है, क्योंकि हमारी क्लास हमारे लिए इनफ है। अगर हम किसी भी चीज की प्रैक्टिस करेंगे तो हम उसमें परफेक्ट हो जाएंगे। और मुझे पता है कि मैं अभी स्टार्टिंग स्टेज का स्टूडेंट हूं और मेरे अंदर बहुत सारी गलतियां हैं। अगर मैं अपनी प्रैक्टिस को स्टार्ट कर लूंगा तो वो भी कवरेज में आ जाएगी। मगर हमारे एल्डर्स ये कहते हैं कि प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर तुम किसी भी चीज की प्रैक्टिस करोगे ना, तुम उसमें जो है ना स्ट्रांग हो जाओगे। गाइस एक्चुअली क्या है कि हमें जो है बाहर अब्रॉड में जाके पढ़ना चाहिए, क्योंकि जब हम अपने कल्चर को चेंज करने की कोशिश करेंगे ना, तो ये लगा लो हमें न्यू चीजें जो है ना सीखने को मिलेगी। बट मुझे अपना कल्चर बहुत ज्यादा पसंद है, क्योंकि मेरी सोसाइटी जो है वो बहुत अच्छी है मेरे लिए। मेरे सारे नेबर्स है, मेरे फैमिली मेंबर्स है, सब हम आपस में इंग्लिश में कन्वर्सेशन स्टार्ट करते हैं और मुझे बहुत अच्छा फील होता है। अगर तुम मुझसे ये कहोगे कि मैं तुम्हें स्कॉलरशिप दूंगा अमेरिका जाने की, मगर मैं वहां पर नहीं जाना चाहूंगा क्योंकि मुझे अपनी कंट्री बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। वेल दोस्तों, मैं तुम्हें ये कहना चाहूंगा कि हमारी सोसाइटी जो होती है ना, वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और हमें हमारे घर को भी साफ करना चाहिए और हमें हमारी स्ट्रीट को भी साफ करना चाहिए। और मैं बहुत सारे पैसे अपनी लाइफ के अंदर कमाना चाहूंगा, क्योंकि मैंने सोच लिया है कि मैं अपनी लाइफ को बहुत ज्यादा लग्जरियस बनाना चाहता हूं, इसलिए मैं बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा हूं। गाइस, अगर तुम किसी भी जॉब में जाना चाहते हो, अदरवाइज किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हो, तो ये लगा लो हमारे इंग्लिश बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम अपने क्लाइंट से इंग्लिश में बात करेंगे तो ये लगेगा कि जैसे कि हम एक परफेक्ट बिजनेसमैन हैं। और अगर तुम किसी भी जॉब पर जाओगे ना, तो ये लगा लो कि तुम्हें अपना इंटरव्यू जो है ना क्रैक करना पड़ेगा इंग्लिश लैंग्वेज में, इसीलिए इंग्लिश हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बट हमारी इंग्लिश भी जो होनी चाहिए वो सबसे डिफरेंट होनी चाहिए। और हमें जो है ना न्यू वोकैबुलरीज को डेली याद करना चाहिए, क्योंकि जब हम न्यू वर्ड्स को सामने वाले के सामने बोलेंगे ना, तो ऐसा लगेगा कि मैं जो है ना एक इफेक्टिव इंग्लिश बोल रहा हूं जो सबसे अलग है। आज के टाइम में हमारे पास बहुत सारे सोर्सेज हैं। मैं बुक से भी इंग्लिश को पढ़ सकता हूं, वीडियो से भी इंग्लिश को पढ़ सकता हूं, मगर मैं फिर भी जो है मैं रेगुलर स्टूडेंट नहीं हूं और मैं अपनी क्लास को मिस कर देता हूं। गाइस एक्चुअली जो है, अगर तुम लाइफ के अंदर कुछ भी करना चाहते हो तो तुम्हें इसके लिए सीरियस होना पड़ेगा। और अगर तुम इंग्लिश के लिए इंटरेस्टेड हो तो तुम इंग्लिश को सीख सकते हो। अगर तुम सोचोगे कि ये सिर्फ हमारे लिए सिर्फ पढ़ाई वाली बात है, तो हम इसको सीख नहीं सकते हैं। और ये पिक्चर सेशन भी हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब मैं पिक्चर पर आइडियाज सोचता हूं ना, तो मैं अपने दिमाग का यूज करता हूं। बस ठीक है। ये चीज हो गई है ना। तो ये लगा लो कि जब मैं ये क्लास को स्टॉप करूंगा हमारी स्पीकिंग की, तो ये हमारा जो है ना प्रैक्टिस का टाइम है यारो।
ये हमारा जो है ना प्रैक्टिस का टाइम है, जो मैं आपको बताता हूँ हमारा प्रैक्टिस का टाइम है। तो पहले तो आप टेलीफोनिक राउंड करने वाले हो मेरे बाद, जब मैं कहूँगा क्लास ओवर तो टेलीफोनिक राउंड में क्या करोगे? अबे टेलीफोनिक नहीं, अच्छा मैंने तो क्वेश्चन पूछे थे ना आपसे, चलो कोई बात नहीं, आप टेलीफोनिक राउंड कर लेना जो मैंने पहले भी करवाया होगा। कैसे? अपना फोन लोगे और यहाँ से वाले से क्वेश्चन पूछोगे, आप कुछ भी पूछोगे ऐसे करके। ऑलराइट, सो मैन कुड यू प्लीज टेल मी हाउ आर यू फीलिंग इन माय क्लास? अब यहाँ वाला आंसर देगा, ओ या आई एम फीलिंग सो मच गुड यार, यू टेल मी वन थिंग इज दैट एक्चुअली दैट आई एम फीलिंग वेरी मच कंफर्टेबल बिकॉज आई बिगिन टू स्पीक इंग्लिश राइट नाउ। यहाँ से फिर दूसरा क्वेश्चन पूछना टेलीफोनिक राउंड ऑलराइट, यार could you please just tell me vocabulary because now this is very recorded for me, then I'm not able to understand what is actually the meaning of this word, so what should I really do? Can you just give me any loophole about? सामने वाला बंदा इसका आंसर देगा, है ना, इस तरीके से है। तो ये वाला टेलीफोनिक राउंड करना, फोन कान पे लगाना, जैसे कि आप कन्वर्सेशन अपने दोस्त से कर रहे हो ना, यहाँ पे भी आप बोलोगे और यहाँ पे भी आप बोलोगे, बड़ा मजा आएगा यार, अकेले करते रहो। दूसरे में आपको ब्रीथ वाला करना है, जो मैं पहले बताता हूँ, सांस लेके धर 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 मारो, है ना। और तीसरे में आपको ये ट्रांसलेशन करनी है, मतलब हिंदी अपनी बहुत लंबी लंबी हिंदी बोलना, जैसे मैं लंबी लंबी हिंदी बोलता चला जाता हूँ, मतलब एक एक सेंटेंस नहीं बोलना, एक लेक्चर से मारना, फिर उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करना, अपने आप करना, फिर हिंदी को एक लेक्चर से मारना, फिर इंग्लिश में कन्वर्ट करना, ये वाला राउंड है हमारा, है ना। हाँ जी, अब मैं आपको न्यू की तरफ लेके चलता हूँ, है ना। देखो आज फील करो आपके आप एक स्टूडियो में हो, मीडिया वाला जो स्टूडियो होता है हमारा, आप उसमें हो। अब स्टूडियो में हो, मैं तो खड़ा हूं, खैर बैठने का हमारे पास में यहाँ जुगाड़ नहीं है, आप स्टूडियो में हो या खड़े होकर भी स्पीच दे सकते हो। आज आपको बोलनी है 5 हेडलाइंस ऑफ द डे, 5 हेडलाइंस ऑफ द डे आपको ये बोलनी है, मतलब अपने आप को ये इमेजिन करना, ऐसी आप आइडिटेशन के अंदर जाना, जैसे कि मैं स्टेज पर खड़ा हूं और मैं न्यूज़ दे रहा हूं और मेरे को 5 हेडलाइंस ऑफ द डे बोलनी है। तो सबसे पहले तो उसी तरीके से स्टार्ट करना जैसे एक न्यूज़ में एक एडिटर स्टार्ट करता है, एक रिपोर्टर जो भी न्यूज़ देने वाला जो होता है हमारे पास एडिटर, वो बोलता है। तो कैसे बोलेंगे? गुड मॉर्निंग लेडीज एंड जेंटलमैन, सो लेडीज एंड जेंटलमैन तो नहीं बोलता, ठीक है ना, शायद मैंने देखा नहीं है। All right, well, good morning India, you're watching Delhi Aaj Tak and this is time 8 o'clock and you're watching 5 headlines of the day. इस तरीके से स्टार्ट करना और उसी के स्टाइल से बोलना। So now first of all, then I would like to tell you the Chief Minister has just taken his decision that he's just going to start the school from the next month and the students of these schools are really very much enthusiastic because they are supposed to meet their students. And as you know that the condition of our education is very much paramount in today's of time because the student has destroyed his education at home due to the COVID-19 and they are unable to get study at their home. इस तरीके से बोलना है ना। And now finally I would like to tell you from the cricket world, as you know that Sachin Tendulkar has decided he's coming back in the cricket world and definitely just going to play the cricket for the India and definitely he will win to the World Cup. इस तरीके से बोलना। मैं ये कहना चाहता हूं देखो आपको कि आप ना न्यूज के बारे में मत सोचना कि हाँ यार मैं न्यूज के क्या बोलूं, कि प्राइम मिनिस्टर के बारे में बोलूं, चीफ मिनिस्टर के बारे में बोलूं, या मैं कोई ऐसी न्यूज बोलूं जो करंट में चल रही हो। आप कुछ भी बोलना, 5 हेडलाइंस, मगर उसके स्टाइल से बोलना। अब मैं रियलिटी में करके दिखाता हूं। ये जो मैंने भी बोला ये थी हमारी गलती, ऐसे नहीं बोलना है कि चीफ मिनिस्टर के बारे में क्या बोलोगे। मैंने स्टार्ट तो कर दिया था चीफ मिनिस्टर के बारे में, बट न्यूज समझ में नहीं आ रही थी तो जबरदस्ती लपेटी है। आप उसके स्टाइल में बोलना, कुछ भी बोलना। देखो आप आएंगे और बोलेंगे गुड मॉर्निंग इंडिया, यू आर वाचिंग दिल्ली आज तक, दिस इज मी, माय नेम इज अखिल एंड टाइम इज 8 o'clock and you are watching 5 headlines of the day. Now first of all I would like to tell you about the education. As you know that this is one of important, I seriously would like to say that if you want to get success in your life then you can just go to coaching center and you can learn better English. Now from the English word I like to say guys, if you really would like to learn English first, then you can just come to my YouTube channel if you are coming there. So definitely then you can just become very good English speaker because we have some vocabulary and also then you can just find the class of spoken English. And now I like to tell you that if a person when you're in class you just go to the college, I would like to say that now the admission has been started and you had better when you were just living in Delhi because here then you can just find the hub of the college and definitely then you can change something in your life. And finally I like to tell you guys the fluent English is very much important because if a person you would like to just go with the desire to become a fluent speaker then you can just come in my class. Because of this class you can see yourself after studying much practices you will just come to a very good stage and you can shine to people.
Now, finally, and the last news of my channel, I'd like to just tell you that if you really would like to learn something, then you can just come at my channel, guys. This is ATV. In ATV, when you are just coming at a podium for speaking something, then you can really just make surprise to other person for speaking this type of English. So thank you very much. This is me, guys. My name is Zakir, watching Delhi Aaj Tak. It was 5 headlines of the day. Thank you very much. इस तरीके से बोलना यार. मैंने ना यहाँ पे न्यूज क्या बोली है, बनाने की कोशिश करी, मगर स्टाइल उनका था. देखो ना इंग्लिश कैसे जा रही है, एकदम ऐसे ब्रेक लगाते हुए. गाइस, फाइनली लाइक टू जस्ट टेल यू वन थिंग, एज यू नो दैट एजुकेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. इफ यू रियली वुड लाइक टू बिकम अ वेरी गुड इंग्लिश स्पीकर, देन यू कैन जस्ट कम एट माय प्लेस. इफ यू आर ट्राइंग टू लर्न इंग्लिश जस्ट बिकॉज ऑफ, देन यू कैन बिकम अ गुड स्पीकर. इस तरीके से देखो ना कैसे रिदम ऊपर नीचे जा रही. ये चीज है, ये सेशन बढ़िया है ना. रिपोर्टर वाला रिपोर्टर सेशन लास्ट में जो 4th नंबर पे, ये वाला बढ़िया है आपका, है ना. इसमें तो आप करोगे बार बार अपने आप को रिप्रेजेंट करोगे, जैसे कि आप स्टूडियो में खड़े हो, बैठ के करोगे तो और बढ़िया है. मतलब या खड़े होके करोगे, मतलब देख रहे ना, इमेजिन कर लेना, एकदम फीलिंग आनी चाहिए, लुक आना चाहिए. बार बार रिप्रेजेंट करो अपने आप को, करना है यार. मुझे पता है कहीं तो आप लोगों को थोड़ी सी हेजिटेशन होती होगी, थोड़ी सी आप शाइनेस दिखाते होंगे, यार करूँ ना करूँ. फिर दिमाग में चलता होगा कि जब ये भाई बहन चले जाएंगे ना तो फिर करूँगा अकेले में. फिर दिमाग आता होगा यार छत पे चल के करता हूँ भाई. ठीक है, ये सारे यार बहाने हैं. ये लगा लो कि बोल तो किसी के भी सामने सकते हो, भाई को कह सकते हो खड़ा होइए जरा देख मैं कैसे इंग्लिश बोल के दिखाऊंगा तेरे सामने. ठीक है, फिर इस तरीके से देख मैं कुछ बोलूंगा, जरा बताइए कि मैं लग रहा हूँ कि रिपोर्टर की तरह बोल रहा हूँ, नहीं बोल रहा हूँ. कॉन्फिडेंस लेकर आ. तुम तो यार घर में ही डर रहे हो कि ये चले जाएं तब बोलूंगा, या रूम खाली हो जाए तब बोलूंगा, छत पे जाके बोलूंगा, अंधेरा करके बोलूंगा. जब यहां डर रहे हो तो बाहर कैसे बोलेंगे फिर यार. मेन कॉन्फिडेंस की तो चीज है. तो स्टार्ट मारो, डर खत्म करो अपना. ठीक, फिर से मैं बताता हूं, सेशन बढ़िया है हमारे लिए. ऐसे दिमाग में इमेजिन कर लेना जैसे कि मैं स्टूडियो में हूं, और स्पीच उसी तरीके से स्टार्ट करना जैसे कि चैनल वाला स्टार्ट करता है. गुड मॉर्निंग एरिया, यू आर वाचिंग जी न्यूज, दिस इज मी, माय नेम इज जॉर्ज, एंड यू आर वाचिंग 5 हेडलाइंस ऑफ द डे. काउंट मत करना कि न्यूज नंबर 1, न्यूज नंबर 2, और स्टाइल से बोलते जाना ऐसे, और खत्म भी करना. सो थैंक यू वेरी मच, कीप वाचिंग दिल्ली आज तक विद मी, माय नेम इज अखिल, यू आर वाचिंग 5 हेडलाइंस ऑफ द डे. इस तरीके से इंग्लिश में चेंजेस आ जाएगी आपकी भाई साहब, ये लगा लो, बहुत बढ़िया कॉन्फिडेंस आएगा. और ये चीजें कर सकते हैं ना तो सामने वाले के सामने इजीली रिप्रेजेंट कर सकते हो अपने आप को. तो करना क्या, देखो आज टेलीफोनिक राउंड कर लेना, पहले कर लेना भाई साहब. माँ कसम नहीं दे सकता, मुझे पता है तुम्हें. अगर यहाँ मेरे सामने स्टूडेंट्स होते तो मैं कहता तो तेरी माँ कसम उठना ही पड़ेगा भाई. पहले बात तो मैं कहता भाई खड़ा होने फटाफट से हो जाता है, मगर आप वहाँ पे कर रहे हो नहीं कर रहे हो मुझे नहीं पता, मगर जो कर रहा होगा ना इफेक्टिव है भाई. मैंने तो अपने आप को चेंज किया है, जैसा भी मैं बोलता हूं, मगर मुझे पता है पहले कैसा था और अब कैसे हैं. कम से कम कोई हमको लुल नहीं कहेगा इंग्लिश में कि हाँ जी बंदे को कुछ भी नहीं आता. ठीक है, वो तो मैं चलो छोड़ो. यहां पे कुछ ऐसे बोलना पड़ता है, वरना अगर फेस टू फेस हो ना तो सामने वाले को तो लपेट देते हैं इतनी देर में. तो भाई साहब पहला आप टेलीफोनिक राउंड करना दोनों तरीके से. आप ब्रीथ वाला सेशन भी कर लेना, जल्दी जल्दी बोलने वाला, ट्रांसलेशन भी कर लेना 5 मिनट के लिए. और इसमें तो आप बेटा फंसने वाले हो, मुझे पता है ये तुम्हें भारी पड़ जाएगा, मगर यही करो वो चीज जो हमसे नहीं हो पा रही, उसी को करने में फायदा है. वह बार बार दो का पाड़ा पढ़ने में क्या, वो तो ऑलरेडी रट गया, आगे तो बढ़. इसको कर लेना, छोड़ना मत कल पे, क्योंकि कल तो मैं दूसरी चीज करवाऊंगा, बड़ी टेंशन. समझ गए. तो सारी प्रैक्टिस हैं कर लेना, और मैंने करवा दी. So I'll be right back, guys. Keep learning and keep speaking. So thank you very much.